السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ میری اس طرح کی خوفناک کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس کہانی کو پورا سنیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب میں چھوٹی تھی تب ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سب کو پتا ہے کہ گاؤں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ وہاں سب لوگ ایک دوسرے کے غم اور خوشیوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں پر ایک 27 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام آذان تھا۔ ہم بچے تو آذان بھائی کہتے تھے، ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اکلوتے تھے۔ آذان بھائی اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے تھے۔ سب گاؤں والے ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ جب سب خواتین نے آذان بھائی سے ان کی شادی کے حوالے سے رائے پوچھی تو آذان بھائی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ہمارے پڑوس والی آنٹی نے دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی کا بتایا۔ وہ بس ماں بیٹی ہی تھی، غریب تھی۔ ہم سب لڑکی دیکھنے دوسرے گاؤں گئے۔ میں چھوٹی تھی۔ آذان بھائی کی شادی کی خوشی میں سب جگہ جاتی تھی۔ لڑکی کا نام ماہین تھا۔ ماہین بھابھی بہت پیاری تھی، دبلی پتلی گوری سی، بالکل موم کی گڑیا جیسی لگتی تھی۔ ماہین بھابھی شادی ہو کر ہمارے گاؤں آ گئی اور ہمارے محلے میں رہنے لگی۔ ماہین بھابھی دیکھنے میں جتنی پیاری تھی، اخلاق میں اس سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ ایک ہفتے میں سب گاؤں والے بھابھی کی تعریف کرنے لگے۔ بھابھی کی شادی کو ابھی 2 سال سے اوپر ہو گئے تھے۔ بھابھی کو ایک بیٹا ہوا تھا۔ سب گاؤں والے خوش تھے۔ سب نے بھابھی کا بہت خیال رکھا۔ آذان بھائی اور بھابھی تو بہت ہی خوش تھے۔ کچھ دنوں سے بھابھی اداس تھی۔ آذان بھائی نے وجہ پوچھی تو بھابھی نے کہا، مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ میں کچھ مہینوں کے لیے اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ بھائی نے کہا کہ چلو میں ہی تم کو چھوڑ آتا ہوں، اور دوسرے دن ان کے گاؤں ان کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ بھابھی کا گاؤں کافی دور تھا، 1 دن لگ جاتا تھا جانے میں۔ وہ بھابھی کو چھوڑ کر 1-2 دن رک کر واپس آ گئے۔ بھابھی کی امی بہت خوش ہوئی بیٹی اور نواسے سے مل کر۔ یہ جون جولائی کا مہینہ تھا۔ بھابھی کی امی کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ بھابھی کے گھر کے صحن میں برگد کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میں کھیت میں کام کرنے جا رہی ہوں، تم درخت کے نیچے نہیں جانا، بھوک لگے تو کھانا کھا لینا، بھابھی کی امی نے بھابھی سے کہا۔ بھابھی کی امی بچپن ہی سے بھابھی کو پیڑ کے نیچے جانے نہیں دیتی تھی۔ وجہ پوچھو تو کہتی وہاں اثرات ہیں۔ اب یہ جولائی کا مہینہ تھا، بہت گرمی تھی۔ بچہ گرمی سے رونے لگا، اوپر سے بتی بھی چلی گئی۔ بچے کو دودھ پلایا، بچہ پھر بھی روتا رہا۔ بھابھی چپ کروا کر تھک گئی، بچے کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی بھابھی نے چارپائی درخت کے نیچے بچھائی اور بیٹھ گئی۔ بچے کو ہوا لگی تو وہ چپ ہو گیا اور سو گیا۔ بھابھی بھی ساتھ ہی لیٹ گئی اور بھابھی کی آنکھ لگ گئی۔ بھابھی کی آنکھ امی کی آواز سن کے کھلی۔ ماہی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ برگد کے پیڑ کے نیچے مت آنا، تو یہاں آ کر سو ہی گئی۔ ارے امی، کچھ نہیں ہوا، تم ایسے ہی وہم کرتی ہو، اتنی اچھی ہوا تھی، نیند بھی اتنی اچھی آ گئی تھی۔ بھابھی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہی ہو، بھابھی کی امی نے کہا اور بچے کو لے کر اندر آ گئی۔ رات میں دونوں ماں بیٹی نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ تبھی کسی کی چیخ سے ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ماہین بھابھی چارپائی پر منہ نیچے کر کے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ماہین، ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ بچے کو کیا ہوا؟ ماں نے کہتے ہوئے بچے کو اٹھایا۔ بچہ بے جان تھا، ماں دھک سے رہ گئی۔ بچہ مر چکا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، میں اسی لیے تو منع کرتی تھی، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ بھابھی تو صدمے میں تھی۔ ماں نے رات کو ہی آذان بھائی کو اطلاع بھیج دی اور کہا کہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال جانا ہے۔ بچہ مر گیا ہے یہ نہیں بتایا۔ رات کو ہی بچے کو ماں نے غسل دے دیا۔ جب غسل دے رہی تھی تب دیکھا بچے کے گلے پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے گلا دبایا ہو۔ ماں نے داماد کے آنے تک بچے کو کفن پہنا دیا۔ داماد کے آنے کے بعد بچے کو دفنانے کے لیے لے گئے۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر بھائی کچھ دن وہیں رک گئے۔ بھابھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد بھائی بھابھی کو واپس لے آئے۔ واپس آنے کے بعد بھابھی زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ سب گاؤں والے بھابھی کی دلجوئی میں لگے رہتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ بچے کا صدمہ لے لیا ہے۔ بچے بھی بھابھی کے پاس جاتے مگر وہ ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی،
किसी से बात नहीं करती। ऐसे करते करते 6 माह बीत गए। भाभी को दूसरा बेटा होने वाला हो गया और फिर कुछ अरसे बाद भाभी को दूसरा बेटा हुआ। अब भाभी नॉर्मल हो गई। सब गांव वाले शुक्र अदा करने लगे। भाभी बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। अब तो वो अपनी माँ के घर भी नहीं जाती थी। 2 साल बाद भाभी को तीसरा बेटा हुआ। सब और खुश हो गए। इस अरसे में भाभी की माँ का इंतकाल हो गया। भाभी दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। 1 मिनट भी दोनों को दूर जाने नहीं देती थी। 1 साल बाद भाभी के यहाँ बेटी पैदा हुई। अजान भाई तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया और फैमिली मुकम्मल हो गई। बेटी अभी 1.25 महीने की हो गई थी कि एक रात सबने खाना खाया। भाभी ने बेटी को दूध पिलाया और सुला दिया। सुबह हुई तो देखा कि बेटी मुर्दा पड़ी हुई है। भाभी को देखते ही ये सब सकते में चली गई। अजान भाई भी गमजदा थे। गांव वालों ने ही सब मिलकर संभाल लिया। कुछ खवातीन बच्ची को गुस्ल देने लगी तो देखा कि बच्ची के गले पर उंगलियों के निशान थे, जैसे गला दबाकर मारा गया हो। किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया और कफन दफन हो गया। भाभी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनको दौरे पड़ने लगे थे। कभी रोने लगती, कभी हंसती तो कभी कहती मैंने अपने बच्चों को खुद मारा है। अजान भाई दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने दवा दी। भाभी सोती रहती थी। जब उठती तो फिर दौरे पड़ने लगते। सब गांव वालों ने कहा कि किसी दूसरे डॉक्टर को चेक करवा के दवा लेनी चाहिए। भाभी ठीक नहीं हुई इस डॉक्टर से। 1 महीना भाभी को दूसरे डॉक्टर के पास दिखाते रहे। इलाज चलता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो भाभी बिना दुपट्टे बाहर निकल आती, गली में सबको कहती मैंने मैंने अपने बच्चे को मारा है। मैंने ही मारा है अपने बच्चे को। बस यही कहती रहती। अपना कुछ होश नहीं था भाभी को। बच्चे भी अजान भाई ही संभालते थे। जो खवातीन बच्ची को गुस्ल देने गई थी वो सबको बताने लगी कि बच्ची के गले पर उंगलियों के निशान थे। सब सच समझने लगे कि शायद भाभी ने ही अपने बच्चों को मारा है। सबने अजान भाई से बात की। भाभी का ठीक होना मुश्किल था और अजान भाई मजबूर होकर भाभी को पागल खाने छोड़ाए। बच्चों का अजान भाई ही ख्याल रखते, खाना बनाकर रख देते और काम पर चले जाते। बच्चे स्कूल से आकर खाना खा लेते और सारा दिन बाहर खेलते रहते। भाई रात को बाहर से ही खाना ले आते, ये कभी गांव वाले ही खाना जाकर दे आते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 1 साल बाद अजान भाई पागल खाने जाकर भाभी को ले आए। जब हम भाभी से मिले तो देखा कि भाभी के इतने बड़े खूबसूरत बाल काट दिए हैं। पागल खाने वालों ने उनका बुरा हाल कर दिया है। भाभी इतनी कमजोर हो गई थी, रंग भी सांवला हो गया था। वो बस एक जगह खामोशी से बैठी रहती। 1-2 दिन बाद एक नया इंकशाफ हुआ। भाभी अब सिगरेट पीने लगी थी। पूरे पूरे दिन कमरे में बैठी सिगरेट पीती रहती। ना खाना खाती, ना पानी पीती, बस सिगरेट पीती रहती। पूरे कमरे में सिगरेट के धब्बे पड़े रहते। कभी भूख लगती तो खाना खा लेती। सिगरेट पीने की वजह से भाभी के होंठ और दांत काले हो गए थे। भाभी ने ना बच्चों की तरफ देखा और ना ही उनसे बात की। जब अजान भाई ने देखा कि भाभी ठीक नहीं हो रही तो उन्होंने दोबारा भाभी को पागल खाने छोड़ दिया। वक्त का काम गुजरना है, चाहे जैसा भी वक्त हो गुजर ही जाता है। अभी तो भाई के बच्चे भी बड़े हो गए थे और काम पर जाने लगे थे। 3 साल बाद भाई फिर भाभी को वापस ले आए थे। भाभी के बालों में सफेदी आ गई थी। वापस आने के बाद भाभी अपने बच्चों और अजान भाई से कहती मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला नहीं छोड़ो। पर भाई और बच्चे भाभी को घर में छोड़कर काम करने चले जाते। एक दिन तो भाई भाभी के काम वाली जगह पहुंच गई और भाई का हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेला नहीं छोड़ो। भाभी रोते हुए बस यही कह रही थी। भाई गुस्से से भाभी को पकड़कर घर ले आए और घर में छोड़ के बाहर से ताला लगा दिया। अब तो रोज काम पर जाने से पहले घर को ताला लगा देते। भाभी पूरा पूरा दिन दरवाजा बजाती रहती पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। भाभी खिड़की पे खड़ी होकर चीखती मुझे अकेला नहीं छोड़ो। बच्चे तो भाभी को देखते ही भाग जाते और बड़े खामोशी से गुजर जाते। भाभी खिड़की में खड़ी होकर जो भी जाता उनको चीजें मारती और कहती मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं रहना अकेले यहाँ। कभी कंघी मारती, कभी चप्पल मारती। एक दिन कोई भारी चीज एक आदमी को मार दी और उसके सर से खून बहने लगा। वो गुस्से से अजान भाई को कहने लगा भाभी को वापस छोड़ाओ, ये सबको नुकसान पहुंचा रही है। भाई के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो भाभी को दोबारा से पागल खाने छोड़कर आते। सब गांव वालों ने चंदा जमा किया और भाभी एक बार फिर पागल खाने दाखिल हो गई। 3 महीने बाद भाई के पास फोन आया, पागल खाने से आप अपने पेशेंट को घर ले जाएं, ये अब ठीक नहीं हो सकती। हमने हर तरह से इलाज करके देख लिया, यहाँ ये दूसरे पेशेंट को मार रही है, हम नहीं रख सकते अब इनको।
ये दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है। भाई खामोशी से भाभी को वापस ले आए। भाभी अब चुपचाप रहती, सुबह होते ही घर के बाहर चबूतरे पर आकर लेट जाती, सारा दिन बाहर ही लेटी रहती, रात को घर चली जाती और सुबह फिर बाहर चबूतरे पर आकर लेट जाती। अब तो भाई की भी उम्र हो गई थी, बच्चे जवान हो गए थे, वक्त बदल गया था। गली के कोने पर गांव के आदमी ने पान की दुकान खोल ली। एक दिन पान खाने एक बुजुर्ग आए। वो बुजुर्ग ने देखा कि एक औरत चबूतरे पर लेटी है। उन्होंने पान वाले से पूछा, ये कौन औरत है जो ऐसे बाहर चबूतरे पर लेटी है? बुजुर्ग ने पान वाले से पूछा। पान वाले ने मुख्तसर कहानी सुना दी और कहा, ये पागल हो गई है, इसने अपने बच्चों को भी मारा है। ये सुनते ही बुजुर्ग गुस्से में आकर कहा, वो पागल नहीं है और ना ही उसने अपने बच्चों को मारा है, वो इतनी अजियत में है और सब बातें बना रहे हैं। ये सब सुनते ही पान वाला समझ गया कि ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और वो भागकर अजान भाई को बुला लाया। बुजुर्ग को कुर्सी दी, एहतराम से बिठाया। वो बुजुर्ग अजान भाई से पूछने लगे, ये तुम्हारी कौन है? तो अजान भाई ने कहा, मेरी बीवी है। जब तुमने अपनी बीवी का इलाज करवाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो किसी अल्लाह वाले के पास ले जाते बच्ची को। इस बच्ची की सारी जिंदगी तुमने यूं ही बर्बाद कर दी। वो पागल नहीं है, इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है जो बहुत सालों से इसके अंदर ही रह रही है। अगर सही वक्त पर उसे अल्लाह वाले के पास ले जाते तो अब तक ये बच्ची ठीक हो जाती। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? अजान भाई परेशान हो गए। बाबा आप कुछ करें, मेरी बीवी को ठीक कर दे। ये सब कैसे हुआ? चुड़ैल कहाँ से आ गई? अजान भाई परेशान हो गए। तुम्हारी बीवी किसी दरख्त के नीचे सोई थी, वहीं से वो चुड़ैल इसके जिस्म में आ गई। अब कुछ नहीं हो सकता, इस बदबख्त चुड़ैल ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारे बच्चों को भी उस चुड़ैल ने गला दबाकर मार दिया। तुम्हारे 2 बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जिंदगी लिखी थी, इसीलिए वो बच गए। बुजुर्ग ने कहा, बाबा आप बचा लें मेरी बीवी को। अजान भाई ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। इस चुड़ैल ने बच्ची के पेट में पूरा घर कर लिया है। अगर पहले ही इलाज करवाते तो सब ठीक हो जाता। अब वो चुड़ैल बच्ची के मरने के बाद ही जाएगी। बुजुर्ग ने अफसोस करते हुए कहा। अजान भाई रोने लगे और बार बार बुजुर्ग से कहने लगे कि आप कुछ करें, कुछ तो करें। मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है, अगर हमने कुछ किया तो बच्ची को मार देगी। मैं एक तावीज दे रहा हूँ, जब बच्ची सो रही हो तब उसके गले में डालना, और कुछ नहीं कर सकता। वो बुजुर्ग तावीज देते हुए कहने लगे और चले गए। अजान भाई ने अपने बच्चों को बताया और रात को जब भाभी सो रही थी, सर्दी की रात थी, सेहन में आग जलाई हुई थी, बड़ा बेटा भाभी के गले में तावीज डालने लगा। भाभी ने बेटे के हाथ पर जोर से लात मारी, तावीज उड़कर आग में चला गया और तावीज जल गया। अजान भाई ने वो बुजुर्ग को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। एक तावीज से उम्मीद थी कि शायद भाभी ठीक हो जाती, पर वो भी जल गया। भाभी अभी तक जिंदा है। अब हम शहर में शिफ्ट हो गए हैं, पर हम जब भी गांव जाते हैं भाभी वैसे ही बाहर चबूतरे पर लेटी रहती है। उनको देखकर बहुत रोना आता है। एक गलती से भाभी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम लोग काफी अरसे शहर में रहे। शहर में एक दिन हमें एक और बुजुर्ग नजर आए। उनके पास हमारे वालिद साहब ने जिक्र किया कि इस तरह से एक बुजुर्ग कहकर गए हैं, अगर आप मेहरबानी करें तो हमारे साथ एक दफा गांव होकर आ जाए, क्योंकि हम उस औरत को यहाँ शहर नहीं ला सकते। बुजुर्ग मान गए और कुछ दिनों तक अजान भाई से इजाजत लेकर हम उनको गांव में ले आए। उन्होंने जैसे ही भाभी को देखा तो बहुत परेशान हो गए। कहने लगे, वो बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। मैं इससे मुकाबला करने की जुर्रत कर सकता हूँ, लेकिन आपको लिख कर देना होगा कि अगर इस मुकाबले के दौरान आपकी बीवी जान से गई तो आप मुझे मौरूद इल्जाम नहीं ठहराएंगे। अजान भाई ने कहा कि मेरी बीवी तो वैसे भी आधी मरी हुई है, बरसों गुजर गए हैं, कभी इसने प्यार से बात नहीं की। अब तो बस एक निकाह के रिश्ते को निभा रहा हूँ कि ये मेरी बीवी है, कहाँ जाएगी, वरना उसे न घर का होश है न बच्चों से प्यार है। वो तो खामोश रहती है, यहाँ डरी सहमी रहती है, अगर उसके कोई करीब जाए तो उसकी जान लेने की दर पे हो जाती है। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, कल 14वीं की रात है, ये गुजर जाए, क्योंकि इस वक्त इस तरह की चीजें बहुत उरूज पर होती हैं, उनको छेड़ा नहीं जा सकता, और फौरन उसके बाद हम अमल करेंगे। 3 दिन का अमल होगा, यहाँ तो ये चुड़ैल बाहर निकल आएगी और यहाँ तुम्हारी बीवी की जान लेकर यहाँ से चली जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। 1 दिन के बाद 3 दिन का मौलवी साहब ने अमल शुरू किया। जब मौलवी साहब ने वो अमल शुरू किया तो उस वक्त भाभी को
कमरे के अंदर कुर्सी से बांध दिया गया था। 2 दिन के अमल के बाद तीसरे दिन मौलवी साहब ने भाभी को बाहर अपने सामने बिठाया, एक दायरा लगाया और कुछ देर के अमल के बाद एक काला सा साया भाभी के जिस्म से निकलकर बाहर आ गया। सब लोग हैरान थे। तो बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्यों इस बच्ची की सारी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी, क्यों इस बच्ची के बच्चों को तू मारती रही, आखिर इसका क्या कसूर था? इसको छोड़कर फौरन चली जा वरना तुझे जलाकर यहीं भस्म कर डालूंगा। तो वो खौफनाक औरत जोर जोर से कहके लगाने लगी और कहने लगी, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं कि जब तुम हमें बुलाओगे हम आ जाएं और जब तुम चाहो तो हम चले जाएं? मैं यहाँ पर खुद नहीं आई, बल्कि इस लड़की की माँ ने अपने शौहर को काबू करने के लिए अमल करवाया था। उस बरगद के पेड़ के नीचे जिस बाबा ने बैठकर अमल किया था, उसी चक्कर और तावीज धागों में उसका शौहर मारा गया और मैं चूंकि अब आ गई थी लिहाजा वापस नहीं गई और उसी बरगद के पेड़ पर मैंने बसेरा कर लिया। इसकी माँ अपनी बेटी को तभी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठने से बार बार मना करती थी, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार एक दिन इसकी बेटी बरगद के पेड़ के नीचे खामोशी से सो गई और मुझे मौका मिल गया, क्योंकि मैं अपना घर बार छोड़कर जबरदस्ती तुम लोगों की दुनिया में बुलाई गई थी, लिहाजा मैंने इसके अंदर घर कर लिया, इसके वजूद के अंदर रहने लगी और फिर इसके बच्चों को मारने लगी। ये तो खुशकिस्मत थे इसके 2 बच्चे जो बच गए, वरना बाबा जी फौरन बोले कि अगर तुझे इसी तरह बदला लेना था तो तू इसको भी खत्म कर देती, इसको क्यों जिंदा छोड़ा? तो चुड़ैल गोया हुई, इसको इसलिए जिंदा छोड़ा कि जैसे मैं बर्बाद हुई ऐसे ही इसको भी बर्बाद कर दिया। उस बाबा ने मुझे मेरी दुनिया से बुलाकर यहाँ भटकने के लिए छोड़ दिया और मैंने इसको सारी जिंदगी इसके अपनों के होते हुए भी कभी अपनों के साथ रहने नहीं दिया और अब भी मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाबा जलाल में आ गए और उन्होंने कहा, पूरी जिंदगी तूने इस बच्ची की बर्बाद कर दी, जवानी से बुढ़ापे की तहलीस पर आन पहुंची और अब भी तू इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं मानता हूं कि जिसने भी तुझे बुलाया गलत किया, इसकी माँ ने भी गलत किया, लेकिन माँ तो कब की मर चुकी। माँ की सजा तू बेटी को कैसे दे सकती है, और वो भी तूने इतनी सख्त सजा दी। अब चली जा वरना तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। चुड़ैल जोरों से कहके लगाने लगी और कहा, मुझे पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर बाबा ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और उसके ऊपर राख छिड़कने लगी। जैसे जैसे राख उसके ऊपर डलने लगी वो तड़पने लगी और साथ ही उसको आग लग गई और आग लगते सार उसका धुआं धुआं वजूद हवा में तहलील होने लगा और वो जलकर खाकस्तर हो गई। उसका खात्मा हुआ और बाबा जी ने सुख का सांस लिया और साथ ही उस बच्ची की तरफ देखा और उससे कहा कि अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? वो एकदम होश में आ गई और भाभी इर्द गिर्द लोगों को देखने लगी। भाभी ने कहा, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है? भाभी तो अपने बच्चों को भी नहीं पहचान रही थी कि ये कौन है। उनके जहन में अभी तक वही रात अटकी हुई थी जब वो अपनी बच्ची को लेकर उस बरगद के पेड़ के नीचे सोई थी। बाबा जी ने अजान भाई से कहा कि अब तुम अपनी जिंदगी की उजड़ी हुई कहानी अपनी बीवी को बिठाकर प्यार से आहिस्ता आहिस्ता सुनाओ, कहीं उसको एकदम सदमा न लग जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी बची हुई जिंदगी अब बेहतरीन गुजरेगी। और हाँ, एक और नसीहत करता चलूं कि अपनी बच्चियों को बरगद के पेड़, नीम के पेड़, इस तरह के घने दरख्तों के नीचे जाने से रोकें और अगर जाना भी हो तो सर पर दुपट्टा लेकर जाएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आशिक हो जाया करती हैं और कई दफ़ा दुश्मन भी बन जाया करती हैं। ना इनकी दोस्ती अच्छी और ना ही इनसे दुश्मनी अच्छी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कहा कि ख़वातीन अपना सर ढांप कर रखा करें, उसमें बहुत सारी वजूहात पिन्हा हैं। अजान भाई बहुत खुश हुए और बाबा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम लोग बाबा जी को लेकर शहर आ गए। अब हम जब भी गांव जाते हैं भाभी हमसे बड़े प्यार और खुलूस से मिलती है। भाभी को अपने बच्चों के मरने का बहुत गम है, लेकिन अजान भाई उन्हें अक्सर कहते हैं कि पिछली जिंदगी के गमों को याद करने से बेहतर है जो अल्लाह ताला ने आगे खुशियां नवाजी हैं उनमें जिया जाए। बेशक हमें उसकी रजा में ही राजी रहना चाहिए।